Assalamu alaikum, and a very warm welcome to everyone joining us today. I am Laiba, a clinical psychologist and STAR lead at Pehchan, and I will be your host for today. On behalf of Pehchan and STAR, I am delighted to welcome you to the second webinar in our STAR webinar series. To begin today's session, I would like to invite Mr. Saad for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. Jazakallah. Thank you, Saad, for the beautiful recitation. So before we move into today's discussion, I would like to briefly reflect on our first webinar in the STAR webinar series. The inaugural session was delivered by Professor Dr. Muwaddat Hussain Rana, who set the stage for this important series of conversations on children digital well-being. Dr. Muwaddat beautifully highlighted the difference between healthy and unhealthy screen use, the factors that influence development, child health, well-being, and psychosocial factors, all those factors that play a part. Dr. Muwaddat also shared valuable insights on positive parenting, communication skills, and connection with the child, while encouraging participants to think critically about the evolving role of digital technologies and AI in children's life. So, moving forward, it is now my privilege to introduce our respected speaker for today's session. Our moderator for today is Dr. Naeem Zafar. Dr. Naeem Zafar is a distinguished pediatrician, child rights advocate, and development consultant with over 25 years of dedicated service in the non-profit sector. He currently serves as the president and honorary CEO of Pehchan, chairman board of directors at Pakistan Alliance for Early Childhood, and convener of Child Rights Group, Pakistan Pediatric Association. In these roles, he leads impactful initiatives focused on child protection, child rights, and well-being. Dr. Naeem is currently a board member of International Society for Social Pediatric and Child Health, and he has been a board member of International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. Dr. Naeem's contributions have been widely recognized, earning him prestigious honor including the Everyday Hero Award from International Center for Missing and Exploited Children USA, ISPCAN Multidisciplinary Global Award, and the President of Pakistan Community Pediatrician Gold Medal Award and Vasti Memorial Gold Medal from PPA. We are truly honored to have him today as our moderator. It is now my privilege to Now it's over to Dr. Naeem. Welcome, Dr. Naeem. बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये इंतहाई जैसे कहते हैं कि फख्र की बात है कि इस वक्त हम जो हमारा सेकंड वेबिनार है स्टार सीरीज का, उसमें हम यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे आज की स्पीकर हैं प्रोफेसर नाजिश इमरान, जो कि एक इंतहाई काबिल और इंतहाई दर्द दिल रखने वाली चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं। ये जानते हुए कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एक इंतहाई उनका किस्म की स्पेशलिटी है, बहुत कम लोग हैं इसमें, और जिस डेडिकेशन से वो काम कर रही हैं ये हमारे लिए एक बाइस तकलीद है। और दूसरा, मुझे इंतहाई से ज़्यादा खुशी है आज हमारे दरमियान में प्रोफेसर खालिद बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं इसमें, क्योंकि खालिद बुखारी साहब हमारे रोल मॉडल हैं। इनका जो विजन है वो तकरीबन
4 दहाइयों पे मुहित है, और इन्होंने जो जिस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान की बुनियाद रखी, उसको चलाया, और आज वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जनूबी पंजाब के लिए बच्चों की सेहत और बच्चों की जो बीमारियों के इलाज गाह के तौर पे वो काम कर रहा है। जो लोग बुखारी साहब को वैसे जानते होंगे, लेकिन जो अच्छी चीज जो मैं जिस चीज की तरफ मैं कहूंगा कि वो उनका जो शौक और शौक है नर्चरिंग केयर में, खास तौर पे मैं मेरी पिछले दिन उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा आपने हमें 3 हिस्सों में सिखाया। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स नर्चर किए एज अ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उनको नर्चर किया और उनको लेके और उनको इस काबिल किया कि वो आज के अच्छे डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने टीचर्स को नर्चर किया। जब गए वो उधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में, तो उन्होंने नर्चरिंग की स्पेशलिटीज की, लोगों को तैयार किया और टीचर्स पैदा किए। और आज जो वो अपने रिटायरमेंट के बाद वो नर्चर कर रहे हैं पौधों को, धरती को, जमीन को, और फिर पौधों को, और किस तरीके से उनको नर्चर करके, ये उनका शौक है, और वो उनको बना रहे हैं। और वो पौधे किस तरह जब जब वो फल देते हैं तो कितनी खुशी होती है। यही सारी चीजें जब हम देखते हैं बच्चों की केयर में, सो हम वो देखते हैं कि हमारे बच्चे भी किस तरह उनको माँ के कोख से लेके और फिर अर्ली चाइल्डहुड और फिर लेट चाइल्डहुड में किस तरह उनको नर्चर किया जाता है। So I'm so grateful for Bukhari Sahab to have joined us as a chief guest for today's session. I will not be taking a lot of time. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का। वेबिनार के बारे में मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा पहचान का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि पहचान प्रोटेक्शन एंड हेल्प ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। सो जब हम बात करते हैं अब्यूज एंड नेग्लेक्ट की, तो उसकी प्रिवेंशन की जब हम बात करें तो वो प्रिवेंशन सिर्फ और सिर्फ अब्यूज होने के बाद जो मसाइल है उनको नहीं देखती, बल्कि पहले उससे रोकती है। और दूसरी तरफ पहचान सेहत के लिए काम करती है, तीसरी तरफ पहचान नर्चरिंग केयर के लिए काम करती है। जो स्क्रीन टाइम है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, ये तीनों पे अच्छा या बुरा असर डालता है। और यही वजह है कि हमने ये देखा कि जहनी सलाहियतों को देख अंदर स्क्रीन का क्या रोल है, बचपन में उसका क्या रोल है, और प्रोटेक्शन के अंदर उसका क्या रोल है। इसके हवाले से हमने पूरे 1 साल की सीरीज बनाई है। आज जो पिछली दफा प्रोफेसर मोहद्दत राना ने उसके ओवरव्यू दिया था कि उसके क्या फवायद हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। आज हम उसका देखेंगे प्रोफेसर नाजिश से कि किस तरह वो हमारे बच्चों के जहनों पे असरअंदाज होती है। और इंशाल्लाह अगली सीरीज में हम इसके प्रोटेक्शन की साइड पे भी जाएंगे। सो मैं माइक वापस दूंगा लाइबा को कि वो अपने पहले स्पीकर को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं प्रोफेसर नाजिश की बातें सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Dr. Naeem. Welcome, Dr. Nazish. So, Professor Dr. Nazish is a renowned child and adolescent psychiatrist and currently serves as the head and professor of Department of Child and Family Psychiatry at King Edward Medical University, Lahore. She is also a member and fellow of Royal College of Psychiatrists, UK, and has also completed a PhD in psychiatry with a focus on school mental health. Dr. Nazish has played a pioneering role in strengthening child and adolescent mental health services in Pakistan, including the establishment of country's first dedicated child psychiatry inpatient unit at King Edward Medical University in 2012. Throughout her clinical, academic, and leadership contributions, Dr. Nazish has significantly advanced the field of child mental health and psychological well-being. Her areas of expertise include school mental health, autism spectrum disorder, emotional and behavioral difficulties in children and adolescents, self-harm, and suicide prevention. She has represented Pakistan at several national and international scientific forums and has contributed extensively to research,
training, capacity building, initiatives in child and adolescent mental health. We are truly honored to have Professor Dr. Nalish Imran as our key speaker today and look forward to benefiting from her valuable insight, expertise, and experience. A very warm welcome to you, Dr. Nazish. Thank you so much, Blaiba, for a very kind introduction. Can I just check if I'm audible? Yes, you are, Yes. Dr. Nazish. You are. Great. Thank you so much, and I would like to sort of start by thanking Dr. Naeem Zafar and Pehchan for inviting me to be part of this very important discussion, जो कि आजकल के लिए हर एक के लिए बहुत important है. All of us are stakeholders, whether we are clinicians, whether we are parents, whether we are just a community members, school teachers. So I think it's a wonderful initiative, and Professor Modat Rana set the scene for future discussions, and I went through his webinar recording as well. What a mesmerizing speaker he is. And today we will continue with that discussion. I think I've got around 15 to 20 minutes. Is that correct? Yes, Dr. Nazish. Yes. You can take 20. Okay. Dr. Nazish, Screen. you are the only speaker. मैं चाहूंगा कि 20 मिनट आप बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे जो इसमें शामिल हैं ख़वातीन और हज़रात के सवालात हमें बहुत ज़्यादा लेने होंगे. और सिर्फ मैं सबको बताते चलूं कि वी आर जस्ट इनटू 10 मिनट्स इनटू आवर वेबिनार और हमारी 100 की कैपेसिटी भर गई है. Okay, so I think that gives us an idea कि कितना ज़्यादा it's important and how people find it relevant. And definitely हम 15 से 20 मिनट में just presentation को go through कर लेंगे so that we have more time for discussion. और बाकी इतने extreme senior members मौजूद हैं, so we can have a discussion that would be, I feel, more helpful. So is my screen visible to all the participants? जी. जी. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आज जो ऐसा इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले वगैरह से रिलेटेड भी जो टॉपिक मुझे दिया गया था, दैट वाज रिलेटेड टू स्क्रीन्स, प्ले एंड हाउ इट अफेक्ट्स द यंग माइंड. एंड हम थोड़ा सा फोकस करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से एंड स्क्रीन्स का इम्पैक्ट, व्हाट इम्पैक्ट इट हैज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल एज आवर डेली प्रैक्टिस, हम जिस भी फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं. सो एक की पहली चीज, आई थिंक सॉर्ट ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि स्क्रीन्स, चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, चाहे हम टैबलेट की बात करें, टीवी की या मोबाइल की, इट्स अ सिंबल ऑफ द मॉडर्न एज. एंड फॉर आवर चिल्ड्रन, दे आर डिजिटल नेटिव्स, सो दे आर ग्रोइंग अप सराउंडेड बाय स्क्रीन्स. They are surrounded by the digital information. They have lots of entertainment on screen. So screen time is a major part of their life. So not sort of considering it as important या बिल्कुल उसका exposure बंद कर देना perhaps is not going to be helpful. However, उसके फायदे भी हैं और बहुत से जो है disadvantages भी हैं, जो let us look at this and what as different stakeholders हम इसको किस तरह से बेहतर तरह use कर सकते हैं. So why it is important for us to talk about it? We do know कि जो शुरू के specifically early childhood की जब हम बात करते हैं, तो screens are woven into every part of the childhood. और primary care visits या जो clinicians हैं, we are the trusted repeated touch points in the first 5 years. पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहती है, चाहे आप पीडियाट्रिशियन हैं, चाहे आप फैमिली फिजिशियन हैं, चाहे आप साइकाइट्रिस्ट हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी डू नो दैट एवरेज डेली स्क्रीन यूज जो जनरल फिगर्स रिसर्च में आपको मिलती हैं, तो 7 से 8 घंटे बच्चे जो है वो स्क्रीन में इस टाइम पे गुजार रहे हैं. और बहुत छोटी एज में more than 2 hours of screen time has been linked to poor developmental screening. Then almost I doubt कि पाकिस्तान में अब कोई भी घर इस तरह से है, लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्लोबली भी देखें तो 98% of children live in a home with at least one or more smart device. So the reach of these screens is very very high, which can be used for multiple purposes, including improving the child's development and mental health.
सो लेट्स लुक एट जस्ट क्विकली, हम अगर बायोलॉजिकल देखें तो जो ब्रेन हमारा ग्रो करता है वो फर्स्ट ईयर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, और अप टू 1 बिलियन न्यू न्यूरल कनेक्शंस पर सेकंड डेवलप हो रहे होते हैं, और ये तमाम हमारे एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होते हैं. सो ब्रेन वायर्स टू वट एवर इनपुट अ चाइल्ड यूजुअली रिसीव्स, एंड दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसको एक 3D एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. द चाइल्ड नीड्स टू सी, नीड्स टू लिसन, नीड्स टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स. और जब हम स्क्रीन्स यूज करते हैं तो स्क्रीन्स तो अपने तरीके से चल रही होती हैं. अगर सामने बच्चा खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, अपसेट हो रहा है, तो screens do not modify as per the child's behavior. So let's now move on. We know that it's happening, we know it's very important. So psychosocial impact in चीजों का क्या है? So we will look at some of the adverse outcomes and then we will look at कि positive फायदे इसमें mental health के हवाले से क्या है. So first, let me just sort of quickly focus. Okay, सबसे पहली चीज तो छोटे बच्चों में डेवलपमेंटल कंसर्न, जो हमने बात की कि उस वक्त बच्चे लैंग्वेज डेवलप कर रहे होते हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस कि अगर बहुत छोटी एज में अंडर 1 ईयर या अंडर 2 ईयर्स बच्चे बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजार रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनके सोशल इंटरेक्शंस में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, जो कि जिस तरह से वर्चुअल ऑटिज्म की एक टर्म शायद आपने सुनी हो. सो चिल्ड्रन उस तरह से एंगेज करना, रिस्पॉन्स करना, तो उनमें उस तरह की अलामात आ सकती हैं जिसमें स्क्रीन इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग रोल. एंड व्हेन यू मैनेज द स्क्रीन्स तो वो डेवलपमेंटल जो कंसर्न्स आ रहे होते हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं. इसी तरह से बच्चों की एज के लिए जो हमने बात की कि स्लीप, उनकी एक्टिविटी, खेलकूद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीन छोटी एज में बच्चों के फोकस के इश्यूज. और आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा रील्स पसंद करते हैं और पेरेंट्स वुड से स्क्रोलिंग करता रहता है. तो रील्स इज एडिंग अनदर डायमेंशन कि इतनी जल्दी चीजें चेंज हो रही होती हैं दैट द चाइल्ड्स एबिलिटी टू हैव सस्टेन्ड अटेंशन, जो कि बच्चे को स्कूल में चाहिए होती है एकेडमिक टास्क में, तो अटेंशन डिफिकल्टीज बच्चों में बढ़ती जा रही हैं. देन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से एंजाइटी का रिस्क एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से रिसर्च में प्रूव हुआ है. डिप्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा है. एंड वी लुक एट कि किस तरह से ये चीजें बढ़ती हैं. स्लीप डिस्टर्बेंस की हमने ऑलरेडी जिस तरह से बात की. साइबर बुलिंग या ऑनलाइन हरासमेंट इज causing a significant impact and we'll come to that in a minute. इसी तरह से इंटरनेट एडिक्शन जो है is now a term जो कि डायग्नोस्टिक कैटेगरीज में आने शुरू हो गई है and it's going to become perhaps a major part as we go along. So किस तरह से स्क्रीन साइकोसोशल या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है? पहली चीज तो ये है कि when the children are on screen, चाहे हम एडोलेसेंट्स की बात करें या यंग एज की, they are spending quite a lot of time alone. कई बच्चे जिनमें एंजाइटी होती है या सोशली वो अनकंफर्टेबल होते हैं व रियल लाइफ में उनके फ्रेंड्स नहीं बन रहे होते, सो दे आर मोर प्रोन टू स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन स्क्रीन एंड दे हैव अ वर्चुअल सॉर्ट ऑफ लाइक लॉट्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, बट एक वो उनको ईज उसमें होती है. सो लॉट ऑफ टाइम स्पेंडिंग अलोन लोनलीनेस की फीलिंग को बढ़ा सकता है और वो जो सपोर्ट सिस्टम अफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है. देन अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत ज्यादा एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ पुटिंग देयर बेस्ट फेस फॉरवर्ड. कोई भी जाके अपनी परेशानियां तो शायद नहीं बताता, लेकिन कहाँ विजिट करने गए, कहाँ पे खाना खा रहे हैं, सो एवरीथिंग लुक्स वेरी ग्लॉसी and fictional characteristics. And sometimes adolescents or बच्चे they feel that it affects, they feel that they are not high up on the social ladder and that can affect their own view of themselves, जो कि उनमें इमोशनल डिफिकल्टीज का रिस्क बढ़ जाता है. We do see lots of, there are some sites unfortunately जिसमें आप जाएं तो सेल्फ हार्म बहुत ग्लैमराइज हो रहा होता है, प्रोमोट हो रहा होता है. एंड वी कम अक्रॉस एडोलेसेंट्स इन क्लिनिकल सेटिंग हु शो अस, एंड लोग बच्चे कट करके और उसमें अपनी पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं एंड देन पीपल आर कमेंटिंग. सो देयर आर लॉट्स ऑफ दो सॉर्ट ऑफ साइट्स एज वेल व्हिच ग्लैमराइज सेल्फ हार्म. तो वो इम्पैक्ट एक एडोलेसेंट इन पर्टिकुलर जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो सकता है, that can worsen their mental health. Poor sleep directly linked to depression का रिस्क बढ़ाने में.
ऑनलाइन हरासमेंट वी डू सी क्लिनिकली, कई बच्चे सेल्फ हार्म के साथ आ रहे होते हैं बिकॉज दे आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन, और उसकी वजह से दे फील वेरी अपसेट, वेरी डिस्टर्ब, सुसाइडल बिहेवियर्स उसमें बढ़ सकता है। बॉडी इमेज के इश्यूज, many of the eating disorders which I was seeing when I was practicing in UK, now I'm seeing in Pakistan as well, और उसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट जो बहुत ज्यादा फोकस ऑन बॉडी इमेज इश्यूज, वेट लॉस, थिन और मॉडल लुक, उस तरह की चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस स्क्रीन के जरिए वल्नरेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा रहा है। और sedentary lifestyle, we know physical activity is good for mental health, exercise is a natural mood booster, जनरली एंजाइटी वगैरह कम करने में, आपको रिलैक्स करने में फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज हेल्प करती है। सो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जब सिडेंटरी बिहेवियर को प्रमोट करता है तो वो भी मेंटल हेल्थ के रिस्क को बढ़ा देता है। So these are some of the pathways which sort of have been linked कि किस तरह से स्क्रीन टाइम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ाता है। we've already talked about this. Then कंटेंट बच्चे क्या देख रहे हैं, क्वाइट ऑफन अगर ऐसे कंटेंट्स बच्चे देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड है या एग्रेशन और थोड़ा सा वायलेंस को उस तरह की चीजें देख रहे हैं, तो चिल्ड्रन गेट मोर सेंसिटाइज टू दोज थिंग्स, और वो उन्हें नॉर्मल डे टू डे में भी जो है उसको एक्ट आउट करना या उनको उतना इम्पैक्ट उसको उसको सिवियरिटी का अंदाजा समटाइम्स नहीं होता। So all these are some of the factors how the screen time is linked to negative mental health outcome. फिर बीच में यू वुड हैव कम अक्रॉस कई दफा डिफरेंट गेम्स का, पहले एक ब्लू वेल से रिलेटेड काफी जो है वो देयर वाज डिस्कशन कि उससे जो है वो बिहेवियरल इश्यूज बढ़ जाते हैं। देन पबजी से रिलेटेड जो है देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन, लास्ट 1-2 साल पहले भी बहुत ज्यादा हुआ था। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम बस खेले तो उससे जो है वो बच्चा सुसाइडल या होमिसाइडल या बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बिहेवियर होता। दीज गेम्स आर प्लेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन इट्स द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। तो ओवरऑल वल्नरेबिलिटी किसी भी बच्चे की जिस भी एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा है, घर, स्कूल, नेबरहुड, वहां पे क्या हो रहा है, अगर वो चीजें बहुत डिस्टर्बिंग हैं तो ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड सर्टेन जो हमने कहा वायलेंस एक्सपोजर कैन बी द sort of triggering point for something more serious. इस सिलसिले में if you can go on the net and look at this article, PUBG related suicide during COVID pandemic, 3 cases from Pakistan. This was published in an international journal. देन इफ यू रिमेम्बर 2022 में लाहौर में एक केस हुआ था जिसमें दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द डॉन, एक लेडी हेल्थ विजिटर और उसके 3 बच्चों को मर्डर, 14 साल का लड़का था एंड ही सॉर्ट ऑफ टुक द गन and he was wearing all the PUBG gear and he murdered the family, and the case sort of like led to a lot of discussion about how the games are linked to these behaviors. But again the point is highlight this is too much simplifying कि एक बच्चा गेम खेल रहा था तो उसकी वजह से उसने ये कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप उस चीजों की डिटेल में जाते हैं तो बहुत से आपको फैक्टर्स बैकग्राउंड में मिल रहे होते हैं, and game can be one of the point, not the only point. So it's not correct to say कि इस गेम की वजह से ये चीज हो गई। This is too simplifying the issues behind the concerns. फिर ऑनलाइन रिस्क की डॉक्टर नईम जफर ने बात की। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट का एक्सपोजर, आई डू कम अक्रॉस मेनी चिल्ड्रन प्रेजेंटिंग विद ओसीडी जो वहम की बीमारी होती है, और उसका स्टार्ट उस तरह से हुआ कि द चाइल्ड वाज ऑन द स्क्रीन, 9-10 साल का बच्चा saw some videos which were inappropriate for that age group, couldn't make sense of it, cognitively उस तरह से develop नहीं थे, and following that गंदगी के हवाले से, सफाई के हवाले से प्रॉब्लम शुरू होके ओसीडी की तरह से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की। ऑनलाइन प्राइवेसी की वजह से वी ऑल आर अवेयर ऑफ दुआ ज़हरा केस हुआ, अक्सर हम देखते हैं तो मल्टीपल चीजें जो हैं, प्राइवेसी इफेक्ट, साइबर बुलिंग, सेक्सटिंग, these things are happening because I deal with adolescents and I come across adolescents who have been engaged in this behavior, and then there were some pictures shared and led to blackmail and harassment and so many other aspects leading to adolescents presented to
with suicidal behaviors or self-harm. So we are not talking about West, we are talking about what's happening in our part of the country and how we need to be aware what's happening. साइबर बुलिंग इस लिहाज से बहुत डिफरेंट हो जाती है कि इसका इम्पैक्ट नॉर्मल बुलिंग जो होती है उससे भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बाउंडलेस स्पेस है, ऑडियंस इन्फिनिट है, अननोन बुली एंड लो पेरेंटल प्रेजेंस। एक क्राउड मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें यू कम अक्रॉस किसी एक बच्चे को टारगेट कर दिया जाता है एंड एवरीवन इज मेकिंग कमेंट, मेक आइसोलेट करना, नेम कॉलिंग एंड sort of what not is happening. I recently I think few months ago came across कि schools एक पेज बना हुआ है जिसमें anyone can go and say anything about anyone regarding their school and classes, and some children got very disturbed because they were being bullied on that situation. अब रियल लाइफ बुलिंग तो जब स्कूल खत्म होता है खत्म हो जाती है, साइबर बुलिंग देयर इज नो एस्केप बिकॉज इट्स हैपनिंग 24 आवर्स। सो दैट्स व्हाई इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस होता है बच्चों की मेंटल हेल्थ पे। एक दो चीजें और जो प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूज दिस इज बिकमिंग, जिस तरह से जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो डोपामीन बढ़ता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, लोग खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। इट हैज बीन नोटेड कि जिस तरह से नशे या किसी चीज का होता है वो भी डोपामीन पाथवे से काम करता है। सो जो लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें भी उसी तरह की एडिक्शन पोटेंशियल हो सकता है। और in the absence of any other psychiatric issue, excessive screen use can cause significant distress. I've come across adolescents, 10 साल 11 साल के बच्चे who are spending like 14 hours on screen. वो रात को सारी रात जागते हैं, ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, सुबह फजर के बाद सोते हैं, they don't go to school. Parents feel helpless and sometimes एग्रेशन इतनी ज्यादा कि टीवी तोड़ दिया और रात को टीवी दोबारा एक नया आ गया, क्योंकि एग्रेशन इस हद तक है कि पेरेंट्स फील दे कैन नॉट मैनेज। सो दीज आर सम ऑफ द सीरियस सॉर्ट ऑफ जो हम एडिक्शन या प्रॉब्लमैटिक यूज की तरफ जा रहे हैं। एंड चिल्ड्रन हु हैव न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या एंजाइटी हैव बीन नोटिस्ड टू बी मोर प्रोन to problematic internet use because they feel very uncomfortable in the day-to-day environment. तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा वर्स होती जा रही हैं। और इसमें जनरली बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, अगर बच्चे को स्क्रीन ना मिले तो एक्सट्रीम मूडीनेस आ जाती है, ग्रेजुअली टाइम बढ़ता चला जाता है, जिस तरह से नशा टूटता है तो इस तरह से अगर स्क्रीन पेरेंट्स ले लें तो विथड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली में बच्चों में बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू बी अवे फ्रॉम स्क्रीन्स in those situations. So there are lots of negative effect on mental health and we can discuss more when we go into discussion. लेकिन not everything is bad. Mental health में इनके benefits भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं, अभी नो के अक्सर के पेरेंट्स बाहर हैं या बच्चे बाहर हैं तो पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, वीडियो चैटिंग, मैसेजिंग, दिस सस्टेन द बॉन्ड्स with distant family and friends. Isolation का sense कम हो सकता है. We know that helps the child to link with other extended family members. तो इसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है for maintaining connections. We know COVID में जिस चीज ने बहुत हमें survive करने में help की, that was that sort of video contact. जब पेशेंट्स आइसोलेट हो रहे थे, जब बच्चे माँ बाप से अलग थे, तो उस वक्त वीडियो के जरिए कनेक्शंस और स्क्रीन्स के इस्तेमाल से वी दैट वाज हेल्पफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। फिर जब को-व्यूड कंटेंट होते हैं, अगर कंटेंट एप्रोप्रिएट हो तो वो बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग, बच्चों की लैंग्वेज में भी बेहतर हेल्प करता है। बहुत से अब अक्सर बच्चे मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो थेराप्यूटिक टूल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड टूल्स जो डेवलप हो रहे हैं, जिसमें मूड को ट्रैक करना या जो एक हमारी साइकियाट्री में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, बिहेवियर एक्टिवेशन के टूल्स कई जो है वो एप्स इस तरह के आ रहे हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू एक्सेस मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स। इसी तरह से ऑटिज्म और कई डेवलपमेंटल इश्यूज या कुछ और डिसेबिलिटीज में असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगेन दे आर स्क्रीन बेस्ड यूज and how they can improve the inclusion of disabled communities and how they can support the youth who are isolated. So these are benefits as well
फॉर स्क्रीन यूज। अब थोड़ा सा एआई के हवाले से भी कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आई बीन सीइंग मोर एंड मोर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस कि कई बच्चे जो हैं वो अगर इफ दे आर डिस्टर्ब्ड, इफ दे आर इमोशनली वल्नरेबल, तो वो चैट जीपीटी या इस तरह के एआई टूल्स पे अपने इमोशंस लिखते हैं, दे डोंट टॉक टू एनीवन, और उससे रिलेटेड भी कुछ रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कुछ एथिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज एज वेल। I think one of the main point is it's not just the minute. It's we need to know कि अगर screen पे बच्चा है तो what sort of content the child is watching. Slow content जिनका बहुत हो तो they are better than very violent sort of and very fast beat one. किस context में बच्चा screen use कर रहा है, तो there should be some protected time like bed time है या play है या meals के time पे switching off any gadgets at that time. फिर अगर को यूज हो रहा है, if the parents or family members are engaged with the child when the child is using screen, चाहे वो games खेलने में है, discussion है, so that has a positive effect. And always ask what the screen is replacing. क्या sleep, movement या conversation की जगह screen use हो रही है, तो obviously so it's not the time clock की जगह ये चीजें ज्यादा important है, what the child is watching, with whom the child is watching, what it's replacing, and किस context में बच्चा screen use कर रहा है. There are lots of guidelines और तकरीबन तमाम guidelines, चाहे हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की देखें, चाहे हमारे अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री की देखें, WPA की, तमाम में under 1 year it's advisable there shouldn't be any screen time एक्सेप्ट लाइव वीडियो चैट जो बात हुई एक्सटेंडेड फैमिली या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, सो दैट्स ओके। 1 से 2 साल में अगेन शुड बी लेस देन 1 hour और इट शुड बी हाई क्वालिटी को व्यूड ओनली। और थोड़े से अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो अगेन जनरली 2 to 5 years में भी प्रिफरेबली 2 घंटों से ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे है, बट जनरली दैट्स द गाइडलाइन। And 1 hour before bedtime जो है screens should not be used, and that's the advice for adults as well. अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 5 C's की बात करती है कि हर चाइल्ड और बच्चा डिफर करता है, तो फोकस ऑन द चाइल्ड। उस बच्चे की अगर डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है तो शायद एडवाइस डिफरेंट होगी, अगर न्यूरो डेवलपमेंटल कंसर्न्स आ रहे हैं तो देयर मे बी डिफरेंट एडवाइस। देन कंटेंट जो हमने बात की कि कौन सा कंटेंट एज एप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए। देन सिर्फ स्क्रीन्स को काम डाउन करने के लिए यूज अक्सर पेरेंट्स करते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट के देयर शुड बी अदर स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फेस टू फेस फैमिली टाइम और फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप को रिप्लेस ना करे। और कीप टॉकिंग, को व्यू, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े बच्चे हैं, तो को व्यूइंग इज हेल्पफुल व्हेन यू आर यूजिंग स्क्रीन्स। स्लीप की हमने ऑलरेडी बात कर ली, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। रेड फ्लैग साइन जब हम एज क्लिनिशियंस या एज पेरेंट्स चाहे हम बात करें, जो हमें देखना चाहिए, डिले तो नहीं आ रहे, स्लीप प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, जब स्क्रीन्स रिमूव करें बहुत सीवियर मेल्टडाउन्स तो नहीं आ रहे, फिजिकल एक्टिविटी या सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत प्रमोट तो नहीं हो रहा, विथड्रॉल बिहेवियर, डिक्लाइनिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, दीज कैन बी रेड फ्लैग साइंस। और अगर साइबर बुलिंग या इनएप्रोप्रिएट कंटेंट का एक्सपोजर आ रहा है, सो दीज आर द रेड फ्लैग साइंस which we try to look for, that we might will need to intervene. Even clinical settings may just brief, this is now an important part, we do take a screen use history from every child presenting to us. इसी तरह से management में that conversation is now a routine part whenever with anyone who is dealing with children in any capacity. How the screens ask about that, quantify quickly करें, कंटेंट को यूज, कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट द स्क्रीन इज क्राउडिंग आउट पे हमारा जरूर फोकस होना चाहिए। फिर सेट वन रियलिस्टिक चेंज, इतनी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस करना दैट्स प्रैक्टिकली समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। इट्स इम्पोर्टेंट मे बी कोई एक गोल सेट कर लें फैमिली के साथ जो कि डुएबल हो उस फैमिली के लिए टू बिगिन विद, एंड देन ट्राई टू फॉलो इट अप के नेक्स्ट विजिट तक उस चीज पे काम किया जाए, रादर देन 5-6 एडवाइस दे देना एंड नथिंग works in that situation. This is the resource for family media plan. Generally family खुद अपना media plan बना सकती है और बच्चों
बच्चों को कहने से पहले बड़ों को पहले अपना जो है वो स्क्रीन टाइम को मैनेज करना पड़ेगा. दे आर रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन. सो मेकिंग श्योर के स्क्रीन चार्ज बेडरूम के बाहर हो, बड़ों की भी और बच्चों की भी. Making sure that there is some screen protected time, making sure that there are some rules and regulations. So media plan, family can get together and discuss and make a media plan which is workable for their environment. So we can give the resource to the parents और जो families हैं वो उसको use कर सकती हैं. रिस्क की बात करना हर एज पे इम्पोर्टेंट है. छोटे बच्चों में हम स्क्रीन्स पे नेटिकेट क्या है, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, पासवर्ड शेयर नहीं करना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करना. और जिस तरह से थोड़े से बच्चे बड़े हों तो साइबर बुलिंग, ऑफलाइन मीटिंग, सेक्सटिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना. सो दीज आर द एरियाज जो कि पेरेंट्स से बच्चों को गाइडेंस आनी चाहिए rather than from other sources. These are some of the resources and toolkits which we can give to the families, and there are a lot of information available, and the parents can look it up, and they can sort of like make sense of lots of other things. इसी तरह से this is another website जो कि NetSmarts के नाम से है, जिसमें बहुत छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हैं जो कि पेरेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट डिफिकल्ट टॉपिक्स, एंड दे कैन co-view these things together to start discussion. इसी पे ही जो है वो ई बुक्स, एक्टिविटीज, गेम्स और वीडियोस भी हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट वे में बच्चों को गाइड करती हैं रिगार्डिंग द स्क्रीन यूज. देन NSPCC की वेबसाइट है जिसमें कीपिंग चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन के कुछ रिसोर्सेज हैं. सम आर वेरी गुड and that can help the parents navigate, especially those who are not very social media naive है या बहुत ज्यादा यूज नहीं करते. एंड देन इसी तरह से ऑनलाइन सेफ्टी रिसोर्सेज फॉर चिल्ड्रन, हाउ टू स्टे सेफ, प्राइवेसी सेटिंग, सो ऑनलाइन ग्रूमिंग से रिलेटेड. सो देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस भी फैमिली से इंटरेक्शन हो रही है उनका बैकग्राउंड देखते हुए अकॉर्डिंगली उनको गाइड किया जा सके. एंड दिस इज अनदर क्लिनिक फॉर इंटरएक्टिव मीडिया इंटरनेट डिसऑर्डर जो कि बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल का है, जहाँ पे भी अगेन रिसोर्सेज काफी सारे अवेलेबल हैं फॉर द पेरेंट्स. सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द की टेक अवे इज इट्स व्हाट द स्क्रीन्स डिस्प्लेस. So it's very important, protect sleep, play, talk and movement first. Screens उसके बाद होनी चाहिए. Quality, co-use and context matter more than the clock. तो सिर्फ टाइम पे स्पेंड करना is not enough. It carry real mental health risk but also benefits. So it's important कि हम guide करें rather than restrict करने के. और one small written change beats a perfect rule जो कि कोई भी follow नहीं करेगा. Just last, I think I would say that हम उससे डर नहीं सकते, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट वट एवर वी डू इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट फियर. ऑफलाइन रिस्क कंसिस्टेंटली वी नो प्रिडिक्ट्स ऑनलाइन प्रॉब्लम. हम सब चीजों में स्क्रीन्स को ब्लेम नहीं कर सकते. एनवायरमेंट, होम एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी, all these things affects the online problems, and a young person digital wellness is influenced by factors far beyond their digital engagement. So these are some of the things which I thought would be relevant for the discussion, and I'm happy to sort of stop sharing. It was just a run through, very quick overview, so that we can go into discussion and any question answer. So over to you, Dr. Naeem Zafar and Laiba. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिर, इल्यूमिनेटिंग टॉक, और इट वाज ऑल कॉन्टेक्स्ट, और बहुत आपने क्लियरली उसको चीज़ों को बताया. और ये हमारे जो 100 माइनस लोग हैं, मैं 100 माइनस इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर सके, और उनकी अब हमें रिकॉर्डिंग हम देंगे. सबकी तरफ से कुछ सवालात भी आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें सिर्फ आपके साथ शेयर, जो ऑडियंस है उसके साथ शेयर करना चाहूंगा. कि जिस तरह प्रोफेसर नाजिश ने जो बात की है, तो इसमें जो एक इंतहाई जरूरी चीज ये है, 2 बातें अगर हम कहें कि एक तो स्क्रीन टाइम का इफेक्ट हर एज ग्रुप में डिफरेंट है. छोटे बच्चे में वो किसी और तरीके से इफेक्ट करेगा, बड़े में किसी और तरीके से, और जो एडोलेसेंट्स हैं उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से.
और आखिर में जो इन्होंने बात की है कि स्क्रीन भी हमारी जिंदगी का एक परत है, और जो बाकी हमारी जिंदगी के जो हमारे फर्क हैं उनके असरात इस पे आते हैं। सो हमेशा हमें जो ऑफलाइन जो हमारी जिंदगी है उसके असरात नजर आते रहेंगे। हर चीज स्क्रीन पे डाल देना मुनासिब नहीं है। हमें ऑफलाइन कंटेंट या ऑफलाइन हम जो उससे यानी रियल टाइम जिंदगी में हम बच्चे के साथ किस तरह सलूक कर रहे हैं, किस तरह उसको पाल रहे हैं, किस तरह हम उसके साथ जो है खेल रहे हैं, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कोई भी चीज बच्चों को मना करना उसका हल नहीं है। असल चीज ये है कि हम उसको ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं और उसकी जगह हम कर क्या रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइबा से कहूंगा कि सवालात कुछ बताते जाएं और डॉक्टर नाजिश उसके देखते हैं कि जवाब कैसे दे सकते हैं। जी Thank you so much, Dr. Nazish. It was very insightful. So a lot of questions are coming in, और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर नईम और डॉक्टर नाजिश Q&A को फैसिलिटेट करें। सो डॉक्टर नाजिश, एक आपका जो ऑटिज्म है वो आपकी एक स्पेशलिटी भी है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो ऑटिज्म से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ऑटिज्म जो है वो हो सकता है ड्यू टू स्क्रीन टाइम, बिकॉज बच्चे बहुत सारे लैंग्वेजेस से एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि जो लैंग्वेज डिले हो रही है और ऑटिज्म में हमें जो साइंस दिखने को मिलते हैं तो वो हो सकते हैं ड्यू टू स्क्रीन टाइम? अच्छा, देखिए बिल्कुल मतलब है इसमें ये है कि छोटी एज में और यंगर एज में स्क्रीन टाइम लैंग्वेज और सोशल कम्युनिकेशन को डेफिनेटली डॉक्टर नाजिश, नेगेटिव कैन यू हियर मी? है। जी जी बिल्कुल। जी जी आप आर यू एबल टू डॉक्टर नाजिश, अंडरस्टैंड? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरा म्यूट तो नहीं है। आर यू एबल टू हेयर नाउ? Yes, yes, you are. जी जी मैं बात कर रही थी कि देखिए छोटी एज में जिस बात हुई कि स्क्रीन्स का बहुत यंग एज में इस्तेमाल लैंग्वेज और सोशल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस इसको ऑटिज्म की कॉजेशन में नहीं अभी तक फाइंड आउट हुआ। क्योंकि अगर आप आसपास भी देखें सो वी कम अक्रॉस मेनी चिल्ड्रन जो कि समटाइम 24 घंटे ही या जितनी देर जाग रहे होते हैं दे आर ऑन स्क्रीन एंड दे डू नॉट डेवलप ऑटिज्म। सो ये कहना ठीक नहीं है कि स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज्म होता है। अलबत्ता स्क्रीन टाइम का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर बच्चा ऑलरेडी वल्नरेबल है या उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज आ रही हैं या वो ऑलरेडी एट रिस्क है फॉर ऑटिज्म, तो उसमें भी और बाकी बच्चों में भी स्क्रीन टाइम छोटी एज में कम करना इज डेफिनेटली अ गुड इंटरवेंशन। क्योंकि एसोसिएशन जरूर है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में नेगेटिव इफेक्ट्स है, लेकिन कॉजेशन नहीं है ऑटिज्म की। Thank you, Dr. Nazish. That's a very relevant point. So, जैसे डॉक्टर नाजिश आपने हमें गाइडलाइंस का भी बताया, आपने WHO का मेंशन किया और भी बताया। तो इस तरह से हमारे एक पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो डेली लिमिट या कोई कंजप्शन की हमें सेट करनी चाहिए बच्चे के लिए। जैसे वो कह रहे हैं कि दुबई में अंडर 15 यूज नहीं कर सकते और जो बाकी गाइडलाइंस कहती हैं। जी देखिए कई कंट्रीज ने रिसेंटली जो है पहले कुछ कंट्रीज ने स्कूल्स में बैन किया कि स्कूल्स में एडोलेसेंट्स वगैरह के लिए मोबाइल वगैरह जो पहले अलाउ था बंद किया। कुछ कंट्रीज ने जो है अंडर एज 14-15 ईयर्स से कम जो है वो दैट्स अ नेशनल पॉलिसी। और उसमें जब तक कंसेंसस नहीं होगा और उस पे स्पेसिफिक और इस हद तक रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं, इसीलिए उन कंट्रीज ने अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ मेजर्स लिए हैं। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि किस हद तक, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि हर चीज बंद कर देना शायद मसले का हल नहीं है, लेकिन मैनेज करना और गाइडेंस और स्पेशली क्योंकि छोटी एज में एडोलेसेंट्स बहुत वल्नरेबल होते हैं इन तमाम चीजों के। दे आर वेरी इम्पल्सिव एज वेल, उनमें फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में स्क्रीन्स का यूज जो कई जगहों पे एडोलेसेंट एज ग्रुप से या इससे पहले सोशल मीडिया का यूज बंद किया गया है, लेकिन अगेन उसमें उसके फायदे भी हैं उसके नुकसान भी डेफिनेटली हैं। सो आई थिंक वो तो एक नेशनल पॉलिसी के लिहाज से देखना पड़ेगा। व्हाट आई फील इज कि एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे एवरी पर्सन, चाहे आप अपने घर में या अपने
हम अपने चीजों को तो या अपने लेवल पे तो जो चेंज ला सकते हैं उससे तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल टू द पेरेंट्स के देखें, आप अगर एक फर्ज करें 8 या 10 साल का बच्चा है, उसको आप बाजार लेके जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप एक मॉल में गए और आपने कहा चलो जी अब जो है तुम जिधर मर्जी जो मर्जी करो, जो मर्जी घूमो, एंड यू लेट द चाइल्ड गो। यू आर कॉशियस कि जी बच्चा आपके साथ रहे। सो हाउ कैन एज पेरेंट्स एक 8 या 10 साल के बच्चे को यू कैन सेंड द चाइल्ड इन साइबर स्पेस, जहां पे आपको नहीं पता कि बच्चा किससे इंटरेक्ट कर रहा है, किससे खेल रहा है, किससे बात कर रहा है, किस तरह से ऑनलाइन ग्रूमिंग हो रही है। सो इफ यू गिव द स्क्रीन्स इवन एट दैट एज, आपको मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा स्क्रीन पे क्या कर रहा है, एंड देयर आर वेज टू डू दैट। ये नहीं हो सकता कि पहले आप ना करें और फिर 15-16 साल पे पेरेंट्स वांट टू हैव द पासवर्ड ऑफ द चाइल्ड, वांट टू मॉनिटर, क्योंकि उस वक्त वो एक जो डेवलप हो गया होता है, देन दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज एट दैट स्टेज। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट कि मॉनिटरिंग और सुपरविजन कंटेंट की ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि हम टाइम लिमिट या उस तरह से चीजों को देखें। थैंक यू डॉक्टर नाजिश। उसके बाद एक और सवाल हमारे पास आया है कि जो बच्चे जैसे आजकल एडोलेसेंट सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, यूज कर रहे होते हैं। सो अगर ऐसे बच्चों के लिए अगर वो सोशल मीडिया यूज नहीं करे तो वो बहुत सोशली लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो उस केस में फिर पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को क्या करना चाहिए? Just sort of that reminds, yesterday I was seeing a 10-year-old child in my clinic, और उसकी मदर का यही कंसर्न था कि हमने इसको 10 साल की है, हमने इसे फोन नहीं दिया हुआ, तो रोजाना इस चीज पे लड़ाई होती है कि मेरी दोस्तों के पास फोन है और मुझे अलाउ नहीं किया हुआ, और मेरी फ्रेंड्स मुझे मजाक उड़ाती हैं, या sort of like the child feels isolated. I think again देखिए इसमें एक चीज नहीं है, the point is that having that discussion with the child। अब वो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम तो जब छोटे थे तो हमें तो पेरेंट्स को कहना ही नहीं पड़ता था, तो आई ऑलवेज टेल देम थिंग्स चेंज, चिल्ड्रन नाउ हैव चेंज एंड पेरेंट्स नीड टू चेंज एज वेल। व्हेन वी वर यंग तो पेरेंट्स सिर्फ देखते ही थे, तो वी वुड नो कि ये चीज नहीं अलाउ है या वी आर क्रॉसिंग द लिमिट, तो देखना ही काफी होता था। आजकल जब आप कोई भी चीज बच्चों को कहते हैं तो पहली चीज आगे से आती है क्यों, why, so that's the first thing कि ये क्यों मना किया जा रहा है। So it's important that that discussion happens, that communication does happen। आपका फर्ज है as parents as so on, कुछ चीजें आपने बाउंड्रीज लगानी है। Children may not like it, that's fine, but वो एक interaction, they need to know why you are stopping them from certain things। अगर एक बच्चा कहीं जा रहा है, आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा, वी नो कि अब फोन दूसरे नहीं है, तो 8 साल के बच्चे को भी आपको मोबाइल देना पड़ सकता है फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट टाइम। लेकिन जस्ट कोई ये एंड दिस इज नॉट, वो जो है ना पैदाइशी हक नहीं है, तो अगेन जो है ना इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दैट रिलेशनशिप फोकस। अगर पेरेंट्स का बच्चों के साथ बाकी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो फिर ये डिस्कशंस या ये बाउंड्रीज करना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज द चिल्ड्रन ऑल्सो नो दैट दे आर बीइंग अलाउड सर्टेन थिंग्स। कुछ चीजें मना है और इस वजह से मना है, दैट्स ओके कि उनके फ्रेंड्स के पास है या किसी ने अलाउ किया है, लेकिन एवरी हाउस has got its own rules and regulations, and that is what the parents need to emphasize rather than giving in to those demands which they are not comfortable with। इसी के ऊपर मैं आपसे एक और क्वेरी लूंगा कि जिस तरह कुछ मुल्कों ने सोशल मीडिया हम्म यूज बैन किया है 16 साल से कम उम्र पे, उस पे आपकी हम्म क्या राय है? जी, मैं भी कह रही हूँ कि देखिए मतलब है वो देर इज सॉर्ट ऑफ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, क्योंकि काफी एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि चीजें सिर्फ बैन कर देने से मसला हल नहीं होता। दैट कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, लेकिन इट नीड्स टू बी द होल सिस्टेमिक चेंज। जब तक नहीं आएगी तो शायद सिर्फ बैन लगा देना मसले का हल नहीं है। वीव कम अक्रॉस बैन लगता है, देयर आर अदर वेज इन विच जो है, अभी हमें पता है कि कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी एज लिमिट है कि 16 से पहले अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन क्या होता है बच्चे जाके डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। सो देर आर, आई पर्सनली थिंक दैट्स नॉट एज सिंपल कि आपने बैन कर दिया तो मसला हल हो गया, अनटिल एंड अनलेस अदर चेंजेस इन डिफरेंट सिस्टम्स, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे वो कम्युनिटीज है, फैमिली है, वहां पर भी
इसको सेंसिटाइज और उसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सके. गाइडेंस इज आई थिंक मोर important rather than just blanket ban on everything. But that's my point of view. People can have different views regarding that. एग्जैक्टली, थैंक यू डॉक्टर नादिश. डॉक्टर नादिश, एक और सवाल है जो मैं चाहूंगी कि आप उसको आंसर करें. तो यूजुअली जब हमें बच्चों में रेड फ्लैग्स नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें वार्निंग साइंस नजर आ रहे होते हैं, तो उस केस में भी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आई थिंक एक चीज बहुत इट डिपेंड्स ऑन कि किस एज ग्रुप का बच्चा है. इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी वेरिएबल्स. मेन चीज आई थिंक इट्स द कनेक्शन विच मेक्स अ डिफरेंस. कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स और द इमीडिएट केयर गिवर्स, फैमिली एंड द चाइल्ड. अगर वो कनेक्शन पे फोकस हो, helping the understand rather than judgmental attitude के if the parents start a conversation. और again अगर एक छोटे बच्चे में रेड फ्लैग साइंस है तो वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. अगर एक 8-10 साल का या 16 साल का बच्चा है तो एक डिफरेंट कन्वर्जेशन होगी. बट हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड के यू आर कंसर्न. अगर फर्ज करें एक 12 साल का बच्चा है, टाइम नहीं अब गुजार रहा, उसकी पढ़ाई डिक्लाइन हो रही है, कमरे में ज्यादा टाइम है, सो पेरेंट्स नीड टू गो इन स्टार्टिंग विद के आई एम कंसर्न कि मैं ये चीजें नोट कर रही हूँ कि आप कमरे में ज्यादा टाइम गुजार रहे हो, आप बातचीत नहीं कर रहे या अपसेट लग रहे हो. Can we do anything? What can be the reason? Helping to understand and start the conversation. So that is most important. और फिर उस conversation के basis पे how they can support. दूसरी एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विच आई ऑलवेज से, कि हमारा ज्यादा फोकस होता है बच्चे बहुत गुजार रहे हैं टाइम एंड सो ऑन, व्हाट वी आर डूइंग एज पेरेंट्स. सो आई थिंक adults in the family also need to reflect on their screen time use. तो फिर जो है वो अक्सर वरना बच्चे यही कहते हैं कि आप भी तो इतना कर रहे हैं, एंड देन द कन्वर्सेशन गोज इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है. थैंक यू डॉक्टर नादिश. इसी क्वेश्चन से लिंक्ड एक और क्वेश्चन आया है कि अगर हम बात करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं या एजुकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा गिल्ट आ रहा है, एग्जॉशन आ रही है, लैक ऑफ सपोर्ट आ रही है, जो वो खुद भी बहुत फेस कर रहे होते हैं. तो उन्होंने अपने एज अ क्लिनिशियन अपने रोल को कैसे उन्होंने आगे लेकर चलना है और कैसे प्ले करना है बीइंग एन एजुकेटर और बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि वो हेल्प कर सकें या सपोर्ट कर सकें पेरेंट्स की, केयर गिवर्स की. आई थिंक इसमें अगेन आप जिस भी कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट 1-2 मिनट स्क्रीन टाइम से रिलेटेड गाइडेंस शुड बी पार्ट ऑफ योर कंसल्टेशन. वो जस्ट टू गेट एन आइडिया, क्योंकि बात हिस्ट्री में भी हम लेते हैं या जस्ट टू सी कि और कोई कंसर्न हो रहे हैं, और पेरेंट्स को जस्ट बेसिक गाइडेंस देना जो कि चंद मिनट में भी दी जा सकती है. और जस्ट एक या दो ऐसी चीजें जो फैमिली इम्प्लीमेंट कर सके रादर देन वो जरूरी है. और उसमें अगेन देखिए गाइडेंस वेरी करती है, आप किस फैमिली को डील कर रहे हैं. इट हैज टू बी इंडिविजुअल, इट हैज टू बी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, तभी फायदा होगा, अदरवाइज जो है उसका फायदा नहीं होगा. We हम जो have had a क्लिनिशियन child. हैं हमें अपनी तरह जहाँ पे हम लिखते हैं इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, तो हमें स्क्रीन हिस्ट्री या उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री जरूर देखनी चाहिए. और हमारी जी जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस है उसमें लाजमी जो है वो इसमें थोड़ा सा एक मैसेज जरूर जाना चाहिए. जी मैं इसमें ना एक बड़ा अपने एक उस्ताद का एनेक्डोट बताऊं. ये हमारे डॉक्टरों के लिए भी है, जितने भी डॉक्टर सुन रहे हैं इसमें. हमारे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर है कराची में, बिल्लू साहब हैं, बहुत फलाही काम भी करते हैं. सो वो कहते हैं कि हम डॉक्टर हर वक्त जो है जब हम कंसल्टेशन देते हैं तो हमें थोड़ी सी ज़कात देनी चाहिए. और ज़कात वो क्या कहते हैं कि ज़कात ये है कि जब आप अपनी कंसल्टेशन मुकम्मल कर लें तो उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ का एक ना एक मैसेज जरूर दें. चाहे वो हाथ धोने के हवाले से हो, माँ के दूध के हवाले से हो, हफाजती टीकों के हवाले से हो, तो उसी में ऐड कर लें कि वो स्क्रीन की रेगुलेशन के हवाले से जरूर मैसेज जाना चाहिए. बिल्कुल. बिल्कुल.
डॉक्टर नाजिश, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे आपको पता है आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बच्चे अर्न कर रहे हैं। वो लाइव जाते हैं या कुछ लाइव स्ट्रीमिंग होती है और उसकी एक्सेस भी नहीं होती ओपन, वो वीपीएन यूज कर रहे होते हैं या किसी भी मीन से वो कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देखने में आते हैं कि वॉयलेंट कंटेंट देखा है या फिर बच्चा अर्न कर रहा है। तो इस केस में पेरेंट्स या केयर गिवर्स या क्या कर सकते हैं? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें दो तीन चीजें हैं। एक मॉनिटरिंग, और जिस तरह से बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, जाहिर बात है मॉनिटरिंग का लेवल थोड़ा कम होता चला जाता है, क्योंकि देन यू एक्सपेक्ट कि बच्चे इस हद तक कॉग्निटिवली और इमोशनली थोड़े मेच्योर हो जाते हैं कि आप 24 घंटे उनको आपको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। बट अर्ली ऑन, बिफोर गिविंग एनी स्क्रीन एक्सपोजर, कुछ रूल्स डिस्कशन पहले होनी चाहिए, रादर देन दे दिया और उसके फिर 6 महीने बाद एक अजीब वो लड़ाई हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस पहले सेट होने चाहिए बिफोर एनी सच सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर ये कि एक शेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, एंड वी रोट, मी एंड वजीहा रोट एन आर्टिकल फॉर दैट एज वेल, कि पेरेंट्स भी इन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे केसेस हुए जिसमें पेरेंट्स ने बच्चों की वीडियोस बना के शेयर की, या उससे फिर बहुत ज्यादा इनकम वगैरह जनरेट हुई, एंड दे फेल्ट कि उससे बच्चों की डेवलपमेंट, उनकी पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया। बाहर भी कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें एडोलेसेंट्स टुक देयर पेरेंट्स टू कोर्ट, कि उन्होंने मेरी बचपन की वो चीजें लगाई विच आर नाउ एम्बैरेसिंग फॉर मी, या जो है वो उसकी वजह से दे वर बीइंग बुलीड। सो दे थिंग्स आर चेंजिंग। इनकम जनरेशन एट अ यंगर एज, अगेन वी डू सी के जो आप ट्रेंड देख रहे हैं कि अक्सर बच्चे जो है ना वो डिग्रीज में इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ टिकटॉकर एंड सो ऑन, दे फील दे कैन अर्न लॉट ऑफ मनी वाया दीज थिंग्स। तो ये रियलिटीज हम देख रहे हैं, बट अगेन ये चीजें बहुत अर्ली ऑन से, जब तक मतलब है सडनली एडोलेसेंट या उस एज में जाके अगर पेरेंट्स पाबंदियां लगाना शुरू करेंगे और पहले उस चीज को मैनेज नहीं हुआ, तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है उन चीजों की। सो अगेन द पॉइंट इज कीपिंग कनेक्टेड टू द चाइल्ड, गाइडिंग देम, सुपरवाइजिंग देम, मॉनिटरिंग देम। सो उससे इन चीजों में आप कमी ला सकते हैं। और अगर कोई इस तरह का चीजें हो भी रही हैं तो लिमिट सेट करना फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, कि व्हाट टू अलाउ एंड व्हाट नॉट टू अलाउ, और किस तरह से वो उनको ओनरशिप देते हुए, डिस्कशन करते हुए, कुछ बाउंड्रीज फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हुए, किस तरह से कुछ निगोशिएट चीजें की जा सकें। सो आई थिंक इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है कि दिस कैन बी डन। आई थिंक इट असल डिपेंड्स। में 1 घंटा हो गया, लेकिन जी, सवाल हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इजाजत दें तो हम जारी रखते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो हमें फिर यहाँ से इसको फाइव टू बंद करने जी की तरफ वन जाना पड़ेगा। 1:20 पे आई हैव टू अगर आप लीव, तो 15 एक मिनट, पाँच हमें सात 10-15 मिनट मिनट अगर होंगे, आपकी आवाज हाँ, नहीं आ 5 जी जी 5 to 8 minutes हो सकते हैं, रही। क्योंकि आई गॉट अनदर कमिटमेंट एट 1:30। तो चलें, ग्रेट। सो मैं इन 5 मिनट का जो फायदा उठाऊंगा वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर खालिद बुखारी साहब से, कि वो इस पे अपने कमेंट्स दें और इसके हवाले से उनकी तरफ से हमें कोई एडवाइस वगैरह आ जाए, और वो फिर हम साथ लेंगे। जिन लोगों के सवाल हम अभी तक तशना छोड़ चुके हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि बाद में हम उनके मैसेजेस में सवालों के जवाब इसी में जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसके साथ शामिल कर देंगे। तो मैं खालिद बुखारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपने ख्यालात का इजहार कर लें, प्लीज। खालिद बुखारी अभी तो ऑनलाइन थे। ठीक है जरा, सर आपकी आवाज जिस मिनट ऑफलाइन है थी। नहीं अभी थे, जस्ट मीनवाइल फिर एक तो एक सवाल ले लेते हैं। मीनवाइल जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं विल जस्ट स्टार्ट विद हिम। सो अनदर क्वेश्चन इज कि अगर हमने कोई एक्टिविटीज बतानी हो स्कूल में कि जो एजुकेटर्स हैं वो बता सकें पेरेंट्स को एंड ऑल्सो यंग माइंड चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स, कि किस तरह से वो स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं, मोर अबाउट स्ट्रेटजीज।
इसमें एक दो चीजें, एक तो ये कि पेरेंट्स कुछ इस तरह के गेम्स हैं जो कि फिजिकली एक्टिविटीज ही यूज होती हैं, जो कि पेरेंट्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जिसमें चाहे वो डांसिंग है, कुछ गेम्स हैं जिसमें द चाइल्ड मूव्स अराउंड, तो that can be a screen related activity which can be used to spend positive time with the child, और उसमें that can be one thing. इसी तरह से बहुत से लर्निंग एक्टिविटीज हैं जो बच्चों के लिए फन भी होती हैं, तो लर्निंग के लिए भी अगेन द पॉइंट इज को व्यूइंग टुगेदर, जो कि पेरेंट्स कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक की हो चाहे फिजिकल एक्टिविटीज हो, तो स्क्रीन्स को बहुत पॉजिटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है as long as it is within limits. So these are some of the things. बहुत से ऑनलाइन गेम्स प्रोफेसर हैं, खालिद बहुत साहब, सी अगर ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि प्लीज फैमिलीज कैन डू अनम्यूट कर टुगेदर लीजिएगा। यूजिंग स्क्रीन्स। आप अनम्यूट कर देंगे। तो खालिद बुखारी साहब काइंडली अपने अगर ख्यालात का इजहार कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर खालिद बुखारी, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, एक्स डीन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुल्तान। बड़ी मेहरबानी नहीं, आज तो मजा आ गया आप लोगों ने, इट्स वंडरफुल लर्निंग, बट माय पॉइंट इज लिटिल बिट ऑल टुगेदर डिफरेंट whatsoever is there, because I'm a pediatrician. I'm not a psychiatrist, I'm not a sort of things. It's a new problem. Before 2000 we never heard so much. There was no screen time problem. Used to be a cartoon mostly, and any, but now it's a different era. I still remember Dr. Julian Lyne, who was a cardiologist in Newcastle. He said that 50% of the knowledge we don't know. Unfortunately, which part we don't know, that is not clear to us. So it's again so much complex. Dr. Nazish was telling that there is no effect of screen time in autism. But reality on ground, it's not a so important factor. It's a sort of thing when mother, what is autism? It's a lack of social birth. Mother takes the baby out of the womb and hold it in the lap and nurse with a feeder. And third factor is the screen given to the child. So all these three factors inhibit or hindrance for a social development, and also lack of learning skill, because he is getting everything in the lab. How should he? He is not walking, he is not sort of thing doing of the lab, and it's a sort of thing we are nurturing a child in the bubble. That's big factor which I have seen in one, that no doubt screen time is very good as we used to give our children. It was a more relation understanding the nature, cartoon, like Tom and Jerry and Bambi and Jungle Book, that used to have a good effect. Now coming to that, why you are getting fail? Once Mavadat asked me, how can we nurture our culture or develop a thorough 1 million worth thoroughbred human being? Sir, I will again say that it's a combination of two things. One is the discipline, and otherwise if there is discipline,
then we are going to face the pain of regret, which is the nowadays main bread and butter of psychiatrists and also most of the pediatricians. And the main important factor, with due respect, is education, whether it's a teacher, whether it's a surgeon, whether it's a parent rearing their child, it's by osmosis. How come we can stop a child watching this on from screen time when the mother is all the time on screen time? How can we stop a child to not lying when the father is always speaking, not at all speaking truth? So question is that it's a sort of a things we need to develop in two lines. It's a very, very important and very significant issue regarding the development of child and moving the trend of the society. We are putting children, encouraging to earn money from this. So if we are just sort of a thing putting our children who are promoting the TikTok and sharing their video, then something is likely to go wrong. Every stage has got a different, we need to respect that. Whether it's a preconception, whether it's a pregnancy, whether it's after the pregnancy, it's a social birth, educational birth. And another thing is that who will the child all the time? What we say, helicopter parenting. So we should not blame our children at all. We should blame, I think, the parents. We need to educate our parents. That's the main, because it's again osmosis. The girl is going to be like her mother, and the boy is going to be like his father. So what as a father, I think I am allowed to do anything, but I should not allow my child to do that. I can have a screen time daily 8 to 10 hours, but my child is not allowed to have more than 1 hour. It's not such possible. We need to re-educate the parents, and then we can get some fact out of it. Because I have treated some children on screen time, ADHD. We should not blame screen time that's very bad, because at least child has a concentration on something. In case of ADHD, just putting the child on amphetamine, why not we should develop this screen time in a controlled way, and content should be a really education point of view, maybe an entertainment like a Jungle Book, like other cartoon, to develop his humanity, like cartoon. I still watch the Bambi. If somebody has watched it, it's a wonderful. So my point is very simple. Otherwise, people are very much expert. You can think in a different way. And thank you very much indeed for asking to join. And I really enjoyed it. It was a very good education on the behalf of myself. Thank you very much. Sir, I'm so grateful for your comments. और आपने बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं कि नब्ज पकड़ी है, कि जब तक पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, वो बच्चों के ऊपर किसी भी किस्म का ब्लेम नहीं दे सकते. और पेरेंट्स, हम हमेशा से कहते हैं, दे आर द रोल मॉडल्स. सो अगर वो एक अच्छे रोल मॉडल नहीं बनेंगे, तो वो बच्चों से कैसे अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो I will take one final comment from Professor Nazish before closing. Nazish sir, please kindly अपना आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर इसको क्लोज करते हैं. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का एंड टेकिंग लीडरशिप रोल इन अवेयरनेस क्रिएशन. जो भी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई थिंक अगर उसमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स भी उन चीजों को आगे फर्दर जो है वो अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, सो दैट इज हाउ द अवेयरनेस इंक्रीज. सो थैंक यू सो मच पहचान, एंड थैंक यू सो मच आपके लिए भी, हमारे चीफ गेस्ट के लिए भी और लाइबा के लिए, फॉर इनवाइटिंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन.
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बिफोर क्लोजिंग मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो कुछ ज्वाइन भी नहीं कर सके हैं, हम वहां पे भी लिख देंगे। कोई भी किसी किस्म का फीडबैक हो, कोई सजेशंस हो, इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए कोई सजेशंस हो, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें इस पे जितना हम काम करें ऐसा लगता है कि कम है। सो मैं तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे चाहूंगा कि वो इसको एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी समझें, कि अपने आसपास के लोगों को बताएं, अपने बच्चों को संभालें और इसको प्रोपेगेट करने में हमारी मदद करें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर नाजिश इमरान का कि उन्होंने टाइम दिया। ही वाज एक्सट्रीमली बिजी, लेकिन उन्होंने हमें ये टाइम दरमियान में निकाला, और इसी वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, और हम शुरू में घबरा रहे थे कि शायद पार्टिसिपेंट हमारे कम हो जाएंगे, मगर लास्ट टाइम वी हैड अराउंड 85 पार्टिसिपेंट्स। इस दफा हमारे तकरीबन 40-50 पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो कि ज्वाइन नहीं कर सके। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह व्हाट वील प्लान इज कि वील गेट अ डिफरेंट, जो 400 वाला बंडल है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वी विल ट्राई कि हम उसको हासिल कर सकें, ताकि जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार हो उसमें सब लोग शामिल हो सकें। मैं इंतहाई मशकूर हूँ प्रोफेसर खालिद बुखारी साहब का। खालिद बुखारी साहब हमारे रोल मॉडल हैं, मैं सही मानों में कहूँ, और ये फर्स्ट 1000 डेज का कॉन्सेप्ट जो हम आज बात कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि ये पिछले 20 साल से उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और एक मैं पहचान की तरफ से थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट भी करता चाहूँ कि पिछले 2 दिन में, यानी इतवार और पीर को, पहचान ने माँ और बच्चे की सेहत के 3 मराकज जनूबी पंजाब में इनॉग्रेट किए हैं, जो कि एक 2 मुजफ्फरगढ़ जिले में और एक मुल्तान के जिले में, और उनमें एक सेंटर प्रोफेसर खालिद बुखारी साहब ने अपनी ज़मीन पे हमें बना के दिया है, और हम उनके इंतहाई मशकूर हैं उसके लिए भी। और ये जो सेंटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए हैं, बच्चों की जो है माँ बच्चे और फैमिली की सेहत के लिए हैं, उनकी न्यूट्रिशन के लिए हैं, उनकी नर्चरिंग के लिए, केयर के लिए, और उनकी सेफ गार्डिंग के लिए हैं। तो इस चीज के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर फीडबैक, एंड इंशाल्लाह विल ट्राई एंड कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड गिव यू मोर न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू लाइबा फॉर होस्टिंग इट, एंड ऑल्सो आवर टीम मेंबर्स तस्कीन, साद, वसीम, जो कि बैकग्राउंड में हमारे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स और ये सारे काम कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। And thank you once again, Dr. Nazish, Dr. Khalid, and Dr. Naeem. It was a very insightful and thought-provoking session. मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करें, हमने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।